और चलिए अब सीधा रुख कर लेते हैं राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर की ओर, जहां पर 2 दिवसीय माइनिंग कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। MP is 31%. Clearly, we are outperforming, but we have way to go. Coal, manganese, rock phosphate, graphite, etc. Rock phosphate, why it's important going forward? Because there's a lot of focus on fertilizers and there's a lot of imports happening of potash and others. So clearly, the Indian government is looking at reducing imports, thereby promoting, operationalization of mining and rock phosphate in India and phosphorite, which MP has a lot of minerals in the state. Again, the graphite is another mineral which is upcoming in the state. If you look at the overall share of India's resources is around 6.22%. Of course, this number will grow up because there are a lot many states, I will talk about lot many districts in MP which have a lot of graphite, but today the production and as well as the reserve to ratio is around almost zero. So we need to look at that. So these are the minerals of potential, and there are many more. We have just, the minor minerals are there, but we have just focused on some of the major minerals. And in terms of industries, clearly coal is, today we are the powerhouse in the coal production. 8% of India's coal reserves and 16% of India's coal production happens in MP. And in districts like Singrauli, Shahdol, Humaria, Betul and various others. There are of course opportunities. The government generated almost 4,000 crore for coal in FY24 in terms of revenue, and with auction mines soon to produce 25 million tons per annum, 6.8 million tons of expansion of blocks in the progress, this number will grow up significantly. But the more important thing is beyond the conventional use of coal in power, we are seeing a lot more traction in the non-regulated as well as the upcoming areas like coal-based methane is something people are looking at. Underground coal gasification is something that we should look at. Gasification as a whole, there's a lot of focus. The government has also come out with a viability gap funding. There are incentives in the auction blocks for gasification. So clearly we're seeing that those things happening going forward. In terms of critical minerals, looking at rock phosphate and graphite, rock phosphate, we have a lot of rock phosphate in districts like Chabua, Chhatarpur, Sagar, etc. And there are 6 blocks which have been auctioned recently, which is the highest, one of the blocks with the highest FPO, which is 320%. And downstream industry, the fertilizers, water treatment, food and cosmetics, all these are relevant. And with India's significant amount of reserves in rock phosphate, 29%, and second in production, clearly this is a focus area for us. But I would more focus on graphite because we tracked the entire auctions in the last 3 or 4 tranches. The maximum number of bidding, the maximum number of successful auction that happened in the critical mineral auction was graphite. Because if you look at all the minerals, be it lithium, be it cobalt, nickel, based on the battery chemistry, some of these minerals may go. Like manganese is getting replacing a lot of cobalt, because cobalt, the supply chain is very difficult. It's in Congo, it's in China, the processing happens in China. But manganese and graphite and copper, these are minerals which are going to continue in the battery value chain going forward in the n number of years we are looking at. And all these minerals are predominantly available in Madhya Pradesh. So districts like, if you look at Betul, Jhabua, Siddhi, Alirajpur, these have all good quality of graphite. So there is a lot of potential in graphite as well in the state of MP. I'll not talk about much about copper. Everybody is aware about copper. The largest, I would say, the operating mine is in Balanchkhand, which Hindustan Copper is doing. In fact, we are very proud to say we are working with the government of India for the copper vision for the country. And we have been very intricately associated with all the copper producers to understand how copper, and for them, Madhya Pradesh is going to be a key cornerstone state as a focus area because so much of potential. But if I shift my attention to bauxite, clearly there is a lot of bauxite auction that happened. But this is clearly, I think, one mineral where we can focus more, because today the rank in terms of production is pretty less compared to the country. There is a potential here. ये मुझे चीफ सेक्रेटरी का चार्ज लिए अभी मात्र 15 दिन भी नहीं हुए हैं, बट आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिस स्टेट. मेरा अपना राज्य है
मुझे बहुत खुशी हो रही है आप सब लोगों को आज इस हॉल में देख के। मैं आप सब लोगों को वाल्मीकि जयंती की शुभकामनाएं भी देना चाहता हूं। आज का पुनीत दिवस है। इस खूबसूरत हॉल में जहां आप बैठे हैं, ये 100 साल से पुराना हॉल है और इसके बहुत उपयोग चेंज हुए। मुझे याद है कि पहले जब ये विधानसभा होती थी मध्य प्रदेश की, उसके बाद 2007-8 में इसके रेस्टोरेशन का डिसीजन लिया और जब इसको रेस्टोर किया गया तो हमें विश्वास नहीं हुआ। पहले जब विधानसभा बन गई थी 100 साल के ऊपर, करते करते अलग अलग समय में ये पूरा केवल वाइट पेंट दिखता था, चूना पोता जा चुका था इसके ऊपर कम से कम 10 इंच। और ये करीब पिछले 12-15 साल पुरानी बात है कि उसका पूरा रेस्टोरेशन किया गया और ये ओरिजिनल आर्ट वर्क आज से जो 110-115 साल पहले किया गया है, वो खूबसूरत चीज़ आपके सामने है। एनीवे, ये तो रेफरेंस में कि आप कहाँ बैठे हैं और आज की बात। बट आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट माय कोलीग्स राघवेंद्र जी, संजय शुक्ला जी, अनुराग चौधरी जी, CIA के वैश्य साहब और डेलॉयट के राजीव जी, NMCL के CMD साहब, कि आप सब लोग के सहयोग से पहली बार इस प्रदेश में वी आर होल्डिंग ए सेपरेट माइनिंग कॉन्क्लेव। वी हैव बीन होल्डिंग ग्लोबल इन्वेस्टर समिट सिंस 2007. We have been holding it for every 2 years since 2007. But a separate focus on mining is being done for the first time. You would have seen in the exhibition, you would have seen all kinds of the mineral wealth which is available in Madhya Pradesh. You would have seen the kind of, various companies which are there. But the most important point which must have come out clearly in the presentations which have been made till now, number one, that Madhya Pradesh is one of the leading states in the country for mineral resources. 3-4 आइटम में हम लोग नंबर 1 हैं। डायमंड में वी आर द सोल प्रोड्यूसर इन द कंट्री। हम बात करें कॉपर की, मैग्नीज की, वी आर द हाईएस्ट प्रोड्यूसर्स इन द कंट्री। उसके बाद रॉक फॉस्फेट, कोलबेड मिथेन में हम लोग नंबर 1 हैं, रॉक फॉस्फेट, और जो कोयले में हम लोग टॉप 3-4 में आते हैं। इसको यदि हम ये देखें, कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट क्यों इंडस्ट्री लगाता है, इसके साथ साथ हमारा जो एक्सप्लोर्ड रिजर्व है वो भी देखने लायक है। कोयला जो है 200 साल तक के लिए काफ़ी है। कोलबेड मिथेन की मैं मोटी मोटी कैलकुलेशन देख रहा था अभी यहाँ बैठे, जो अभी एक्सप्लोर हो रहा, प्रोड्यूस हो रहा है, उस हिसाब से देखें तो 500 साल में यहाँ का रिजर्व ख़त्म नहीं होगा। सो यू हैव सफिशिएंट इंसेंटिव टू कम एंड रिमेन इन्वेस्टेड। किसी भी कंपनी की लाइफ में 25-50 साल काफ़ी होते हैं एक प्रोजेक्ट को लगा के अपना प्रॉफिट निकालने के लिए। एंड ट्रस्ट मी, तब तक हमारी टेक्नोलॉजीज इतनी चेंज हो जाएंगी कि विल हैव न्यू थिंग्स विच विल कम इन। जैसे कोयले की जब बात चलती है तो वी नो द वर्ल्ड ओवर वी आर टॉकिंग अबाउट मूविंग अवे फ्रॉम कोल। In India also we have taken up a goal of net zero by 2070. और एक मोटी बात है कि अगले 50 साल के बाद कोयले बेस्ड इंडस्ट्री शायद ख़त्म होगी। अभी हमारे पास 150-200 साल का रिजर्व है, तो वी नीड टू मूव अप क्विकली एंड एंश्योर कि जब हम लोग इनके रेस्ट्रिक्शंस पाएँ उसके पहले जो हमारी एक नेचुरल वेल्थ है उसको प्रॉपरली यूज़ कर लें। दूसरी हमारी को, मुझे लगता है आपको बहुत क्लियरली बात सामने आई होगी कि पिछले दिनों जब से एक ट्रांसपेरेंट रिजिम की बात हुई, पल्लवी जी के सिस्टम में प्रेजेंटेशन में भी बात आई, एंड ऑल ऑफ यू आर फ्रॉम द सेक्टर। पहले अलग अलग तरीके से माइन ऑक्शंस, माइन अलॉटमेंट्स होते थे, फिर सुप्रीम कोर्ट आए और नेचुरल रिसोर्सेज के ऑक्शन की बात हुई, एंड देन इट टुक सम टाइम टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि उसके बाद एक पूरी ट्रांसपेरेंट ऑक्शन रिजीम को हम लोगों ने वी पुट इन प्लेस। और ऑक्शंस अभी बहुत रिसेंटली शुरू हुए हैं और लगातार पिछले कुछ सालों तक नंबर ऑफ ब्लॉक्स ऑक्शन में मध्य प्रदेश हैज़ बीन नंबर 1।
तो यदि सबसे ज़्यादा ब्लॉक्स हमारे यहाँ ऑक्शन हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि अब अगले कुछ सालों में हमारा जो प्रोडक्शन लेवल है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने वाला है। आज की तारीख में वी आर वन ऑफ द टॉप 5 स्टेट्स, बट आई एम कॉन्फिडेंट गिवन द फैक्ट that we have auctioned the maximum number of blocks, and now we are moving forward quickly to support our winners of the auction so that they start their production soon. In next 3 to 4 years, I expect Madhya Pradesh to move up in the top 3 states as far as mining production is concerned. तीसरी बात, NMET का जो अभी एक्सप्लोरेशन के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, ब्लॉक्स हैं, उसमें भी मध्य प्रदेश नंबर 1 है. So these factors are sufficient to outline that Madhya Pradesh is the place to be invested in if you are in the mining sector. दूसरी चीज़ किसी भी बिजनेस के लिए होती है ease of doing business. Till very recently, just about till 2 years back, I was Secretary Industries, Government of India also. That time we had done a lot of work on ease of doing business and reduction of compliance burden. And then we actually created another index, and we were working along with the industry to reduce the cost of compliance in the country. And Government of India is actively working. I'm very happy to share that Madhya Pradesh has consistently been ranked in top performing states as far as EODB is concerned. जब EODB की पहली बार रैंकिंग हुई थी, if I remember correctly, it was 2016, 5 स्टेट्स ज्वाइंट टॉप किए थे, सबको 100 on 100 मिले थे, मध्य प्रदेश was one of them. उसके बाद से हर साल हम लोग फ्रेमवर्क चेंज करते चले गए, जिससे कि if some people have achieved a certain benchmark, we should aspire to go further, become better. और हर बार जो नए बेंचमार्क थे, मध्य प्रदेश कंटिन्यूसली रिमेन इन द टॉप 5. और जो लास्ट रैंकिंग निकली 2024 में फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ 2023, इफ आई रिकॉल करेक्टली, मध्य प्रदेश वाज द 4th बेस्ट स्टेट. आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दीज आर द टॉप स्टेट्स. In the EODB, I'm sure all of you would be aware, because you are from the industry sector, that Government of India has come out with a single window system, which is a very beautiful system. आप लोगों में से किसी ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाला सिंगल विंडो सिस्टम यूज़ किया है? हैज़ एनीबडी यूज पर्सनली? कि आपके सबऑर्डिनेट्स यूज़ करते हैं एप्लीकेशन लगाने के लिए? आई डोंट नो, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू सी इट पर्सनली. इट्स AI बेस्ड सिस्टम. You just tell what you want to do, where you want to do, what business do you want to do. It will start throwing questions to you. After that, about maybe 25 odd questions would be asked to you, and the system will understand कि आपको क्या-क्या clearances चाहिए, कहाँ-कहाँ से चाहिए. It will throw out the number of clearances you require from which department, state, government of India, and it will generate just one form uniquely designed for you. उस एक फॉर्म में आप अपनी जो उसमें जानकारी है भर देंगे, तो सिस्टम विल कन्वर्ट इट टू द एप्लीकेशंस रिक्वायर्ड फॉर ऑल दोज लाइन डिपार्टमेंट्स कि उनको क्या चाहिए. उन डिपार्टमेंट में आपकी एप्लीकेशन पीछे से चली जाएगी, और देन यू कैन ट्रैक कि आपकी एप्लीकेशन का क्या हो रहा है. हम लोग स्टेट्स के साथ बात करते थे कि इन्हें टाइम बाउंड डिस्पोजल करें, दैट विल बी द नेक्स्ट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. आई वॉज वेरी हैप्पी टू सी राघवेंद्र का प्रेजेंटेशन कि आपने डीम्ड परमिशन का भी प्रावधान कर दिया है. सो सम जो डीम्ड परमिशंस हो रहे हैं, तो मीन्स ऑल दीज क्लियरेंसेज आर हैपनिंग इन टाइम, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ टू एनी इंडस्ट्री कि मेरे को अपनी क्लियरेंसेज एक टाइम बाउंड मैनर में मिले. दूसरे कुछ जो इश्यूज सामने वैसे राघवेंद्र के प्रेजेंटेशन में आए थे कि नो मैन डेज लॉस्ट. मध्य प्रदेश इज अ वेरी पीसफुल स्टेट. ये जहाँ तक मुझे ध्यान है, ये अब रिकॉर्ड 25 साल का हो गया होगा. जब व्हेन आई वाज हियर हम लोग जाते थे इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव में, तो हम लोग कहते थे पिछले 15 साल में, पिछले 10 साल में हमारा कोई मैन डे लॉस नहीं हुआ. उसके बाद से मैं करीब 10 साल भारत सरकार में लगा के वापस आ रहा हूँ, तो मुझे लगता है 25 साल हो चुका है. 25 साल तक किसी स्टेट में कोई मैन डे लॉस ना हो लेबर रिलेशंस की वजह से, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी स्टोरी, बहुत बड़ी हेडलाइन है.
ऐसा क्यों है, सोचा आपने? कैन एनीबडी थिंक? मध्य प्रदेश के लोग एक बहुत ही डिफरेंट किस्म के लोग होते हैं। बाकी राज्यों में आप जाइए, इफ़ यू रिकॉल 1956 जब स्टेट्स वर रीऑर्गेनाइज्ड, इट वाज ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस और सर्टेन थिंग्स वर देयर, बट वॉट एवर वॉज लेफ्ट आउट इन बिटवीन, मध्य भारत, महाकौशल, विदर्भ, सिरोंज, ग्वालियर, जो बीच में बच गया उन सबको इकट्ठा करके मध्य प्रदेश कर दिया। तो पहले से ही जब मध्य प्रदेश का फर्स्ट रीऑर्गेनाइजेशन के बाद जब बना, तो इट वाज लाइक ए कॉस्मोपॉलिटन स्टेट कि हर आदमी हमारा है, वो कोई इस प्रकार की अंदर बाहर की बात नहीं थी। ये जितने लोग बाहर से आके बसे हैं मध्य प्रदेश में, शुरुआत में फॉर सर्टेन रीजंस मध्य प्रदेश से इवन सिविल सर्विसेज में ऑफिसर्स का सिलेक्शन बहुत कम होता था। वन थिंग आई कैन टेल यू इनसाइड स्टोरी कि दिस इज प्रोबेबली द ओनली कार्डर जहाँ कि ये पूछता भी नहीं कि कौन इनसाइडर है कौन आउटसाइडर है। अदरवाइज बाकी सारे कार्डर्स में बात होती है कि ये आदमी इनसाइडर है तो इसको ये वाली पोस्टिंग दो, ये आदमी आउटसाइडर है तो इसको ये वाली पोस्टिंग मत दो। मध्य प्रदेश में ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि नंबर ऑफ इनसाइडर्स वॉज वेरी लिमिटेड। एंड जैसे मुझे ध्यान है, एक हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री थे वो कहते थे कि जिस प्रकार से शक्कर में चीनी मिल जाती है वैसी इस प्रदेश की तासीर है, बाहर के लोग आके यहीं बस जाते, कोई बाहर मध्य प्रदेश आने के बाद बाहर नहीं जाना चाहता। इसके अलावा अबाउट यू थिंक ऑफ वाटर, वी आर ए वाटर सरप्लस स्टेट इन द सेंस कि वी हैव ऑलरेडी रिजर्व्ड सफिशिएंट वाटर फॉर इंडस्ट्री। लाइन से पूरी नर्मदा नदी आई डोंट नो आप लोगों को इसको स्टोरी पता है कि नहीं। नर्मदा इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट पायस रिवर इन द कंट्री। हमारे ऋग्वेद में लिखा हुआ है कि यमुना जी में 7 बार नहा लो तो आपको पुण्य पाप धुल जाते, गंगा जी में 1 बार नहा लो तो पाप धुल जाते, नर्मदा जी के दर्शन मात्र से आपके सारे पाप धुल जाते। नर्मदा नदी पर पूरी एक सीरीज ऑफ डैम्स बन चुकी है और जो थोड़े बहुत जगह बची हैं बिल्कुल शुरुआत में अमरकंटक के किनारे वहाँ पे भी डैम्स बनाए जा रहे हैं। तो वी हैव सफिशिएंट वाटर। दिस इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक्स, आई डोंट नो वेदर इट होल्ड्स ट्रू फॉर नाउ और नॉट, आज से 25 साल पहले की रिसर्च है। गंगा जैसे इट कम्स फ्रॉम द ग्लेशियर्स, तो देयर इज अ रेशियो ऑफ मैक्सिमम वाटर से समर फ्लो। तो समर फ्लो इज 6% ऑफ द मैक्सिमम वाटर विच गंगा रन्स थ्रू पीक्स।